Good morning, students. Again, I am with the very chapter bipolarity. I mean the end of bipolarity. In this regard, you all students should come to know why did Soviet Union disintegrate. Actually, we are going to discuss about the causes for disintegration of Soviet Union. Of course, because of internal weakness which were seen inside the political parties, particularly in Soviet Union and other republics. Because there was a stagnation in the institutions like economic and politics. Whatever the inspirations, whatever the hopes people had were not fulfilled. Hence, they were very much, they thought that they were neglected, as you know. Hence, whatever the strategy, the planning the governments have taken was not up to the demand of the people. So, the very weakness emerged slowly and slowly, which became the cause of the disintegration of the Soviet Union. Secondly, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारे सोवियत यूनियन में विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि अपने न्यूक्लियर पावर्स को बढ़ाया जाए, अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाया जाए। परिणाम स्वरूप जो भी रिसोर्सेस थे उनका यूटिलाइजेशन मुख्य रूप से आर्म्स प्रोडक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स के कलेक्शन पे विशेष ध्यान दिया गया। स्वाभाविक है कि बहुत सारे जो खर्च एक्सपेंसेस को अन्य क्षेत्रों को इग्नोर करके मिलिट्री पावर पर बढ़ा दिया। दिस वे वॉट एवर द एस्पिरेशंस, वॉट एवर द होप्स द पीपल हैड they were not fulfilled. Not only that, मैं आपको बताना चाहूँ कि किस प्रकार से अन्य जो हमारे रिपब्लिक्स थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, which were under the blocks of the USSR and some countries of Central Asia, they were given importance. They were helped with military power. Satellites countries were also there, and everything was done at the burden of Soviet Union. Hence, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो भी चीज़ें थी, जो लोगों का एक्सपेक्टेशंस था, वो फुलफिल नहीं हुआ और ना ही लोगों पे ध्यान दिया गया, बल्कि उनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया। जबकि लोग चाहते थे कि जिस दृष्टिकोण से हमें लालच दिया गया था कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आई मीन कम्युनिज्म वाज बेटर दैन कैपिटल फॉर्म ऑफ मीन्स कैपिटलिज्म, बट इट वाज नॉट फुल। नाउ योर थर्ड पॉइंट इज रिफॉर्म्स। इन दिस रिगार्ड, the then General Secretary, Mr. Gorbachev, he just studied and came to the point and decided that it was the need of the time to go through the reforms in the political institutions, economic, and other sectors. So the reform, he thought that he would create such an environment where
people of Soviet Union would feel the democratic system which were going on in the West and catch up with the science and technology and information of the West. Hence, he just wanted to go through the reforms in political, education, in economy, and to democratize the system much more. Here मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार से उन्होंने रिफॉर्म्स शुरू किया, लेकिन लोगों के मन में ये बात आई, सोवियत यूनियन और अन्य जो रिपब्लिक्स थे, इसके साथ साथ ईस्टर्न यूरोप के लोग जो कंट्रीज थे, उन्होंने भी ये फील किया कि जो भी रिफॉर्म्स लाया जा रहा है उसकी स्पीड बहुत स्लो है। एक तरफ सोवियत यूनियन के लोग समझ रहे हैं कि स्पीड बहुत स्लो है, इसको और फास्ट होना चाहिए, सो दैट दे वुड हैव बेनिफिटेड मच मोर टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस, ताकि अपनी बातों को, अपनी जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकें। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत जो लीडर्स थे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वे लोग निश्चित रूप से इस कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिस्टम से दे वर एंजॉइंग मोर प्रिविलेजेस, they were enjoying more facilities. They thought that the step taken by Gorbachev was going speedily. Hence, their privileges, their facilities, their importance, the days not ahead would be eroded, ignored. So, on the one hand, the Soviet Union people, and on the other hand, the leaders of Communist Party, they both got disintegrated, disillusioned, separated from the very thought, the very ideas of reforms. They had their different opinions and definition, and hence Gorbachev was neglected, his reforms got failed. But as you know, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह से सोवियत यूनियन का धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहूँ, जो सबसे जरूरी और इम्पॉर्टेंट जो कारण था, वो था राइज ऑफ नेशनलिज्म among the people of the Soviet Union. People and of the Soviet Union, and in all the republics, even in Russia, they thought that they must get some sovereignty, some rights to develop themselves. Regarding it, the very nationalism started emerging among the people. This became the foremost reason for the split or disintegration of the Soviet Union. Here, all the people who were the parts of the Soviet Union, either in Soviet Union or Eastern European countries, Central Asian countries, they had already disbanded communism, and people in their countries, particularly in Eastern Europe, they started doing something for getting more sovereignty and the democratic system of the West. They also wanted to join with them. So these were the
रीजन्स फॉर द स्प्लिट और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। फॉर योर मच मोर रिफ्लेक्शन, यू नो स्टूडेंट्स, दुनिया में ऐसी कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो कभी ना कभी वो फेल ना किया। बहुत सारे सिस्टम फेल कर गए और नए सिस्टम ने उनको रिप्लेस किया। इसी तरह से यदि हम देखें तो सोवियत यूनियन में जो रिपब्लिक्स, अगर उन्होंने डिसबैंड कर दिया कम्युनिज्म को, तो ये पहला कोई सिस्टम नहीं था और ना ही कोई अंतिम सिस्टम जो फेल कर गया अपने देश में या किसी भी पार्ट से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे कारण थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन। समराइज कर आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताऊं कि रशिया में कुछ ऐसे रिपब्लिक्स थे जो काफ़ी एडवांस थे और कुछ ऐसी कम्युनिटी थी जो पीछे चल गई थी, पर्टिकुलरली रशिया। अब उनके साथ, उनको भी इनके साथ चलना पड़ता था, जिससे उनका डेवलपमेंट चौक हो गया। प्लस कहीं ना कहीं उनके बीच में कल्चर का, एथनिक रिलेशनशिप वर नॉट मैचिंग and not matching with the Eastern European countries. Hence, these all collectively became the failure or the disintegration of the Soviet Union. Okay, students, your next topic is consequences of disintegration throughout the world they faced. Here, Soviet Union got disintegrated. I have already explained the causes. अब मैं आपको एक बात बताऊं तो इसका प्रभाव, consequences means effects, क्या क्या हुआ पूरी दुनिया में। पहले कोल्ड वार के अंतर्गत जो भी आपस में डिस्प्यूट्स थे, कंपटीशन था, वो एंड कर दिया। परिणाम स्वरूप जो भी विपन्स वगैरह के दौड़ में शामिल थे, विशेषकर सोवियत यूनियन, द यूएसएसआर एंड द यूएसए, इन लोगों ने आपस में जो राइवलरी थी वो कहीं ना कहीं एंड किया, यानी एक नए दौर की शुरुआत हुई जो कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी की, एक पीसफुल वर्ल्ड की स्थापना की तरफ ये लोग बढ़े, क्योंकि ये चाहते थे कि इस तरह की परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए डेंजरस, not only it is dangerous for the nations but environmentals। इस प्रकार से इन लोगों ने ये सोचा, रशिया बहुत हद तक इस बात के लिए तैयार हो गया कि अमेरिका के साथ मिलकर के और जो भी हमने कलेक्शन किया है, एक्यूमुलेट किया न्यूक्लियर वेपन्स का, आर्म्स का, उसकी दौड़ को न केवल ख़त्म करते हुए बल्कि कुछ जो अनावश्यक हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, विच इज़ नॉट नीडेड इन द प्रेजेंट सिचुएशन, उस समय उन लोगों ने उससे नष्ट करने की बात करी। तो इस तरह से जो पहला था कोल्ड वार ख़त्म हुआ और दूसरे तरफ हम जाए तो उनके बीच जो एक दौड़ थी, एक रेस थी, एक कॉम्पिटिशन थी, आर्म्स कलेक्ट करने की, प्रोडक्ट करने की, जो प्रोड्यूस करने की, वो कहीं के उनके बीच एंड हुई और एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ बढ़ने की शुरुआत हुई। अब सेकेंड टॉपिक आ गया है कि पॉलिटिक्स में न्यू रिलेशनशिप्स वर एस्टैब्लिश्ड। चूँकि
सोवियत यूनियन की जो स्थिति थी अब वो रही नहीं, वो डिवाइडेड हो गई। उसकी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी एंड कर दिया, विशेषकर अन्य रिपब्लिक्स में। और इस प्रकार से नए रिपब्लिक्स, नए नेशंस का विकास हुआ। दे इमर्ज्ड some new countries which were either in the blocks of Soviet Union or in the blocks of USA, and they had their aspirations. They wanted to get more sovereignty. In this regard, they also wanted the democratic forms of government thing and take a step with the steps taken by the West, particularly in the USA, for their all-round development in all aspects, either it is economic, politics, social domains. अब बात इसमें आ गई कि चूंकि सोवियत यूनियन का एंड हो गया, तो क्या एकमात्र जो बिग सुपर पावर रह गया, the only big superpower, that was the USA, should control the whole nations of the world, means there will be unipolarity throughout the world, means एक ही बिग सुपर पावर्स पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, या फिर ये देखा गया कि अन्य जो स्टेट्स जो सोवियत ब्लॉक से निकल कर आया उनकी एक अलग मल्टीपोलैरिटी सिस्टम डेवलप हो रही है। इस तरह की बातें चलने लगी और बहुत हद तक जैसे रशिया है, चाइना है, जर्मनी है, जिसका यूनिफिकेशन भी हुआ, बर्लिन वॉल को डेमोलिश किया गया, तो ये लोग क्या यूनिपोलैरिटी को छोड़कर क्या मल्टीपोलैरिटी में आ जाएंगे, जहाँ पे सबकी विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे दे हैव देयर डिसीजन, दे हैव देयर सॉवरेनिटी, दे हैव देयर पॉलिटिक्स टू कंट्रोल द वर्ल्ड and help one another. So that sort of systems were developed. In this regard, those nations which adopted democracy in this very situation, मैं आपको बताऊं, the World Bank and the International Monetary Fund were established in their very time, which started giving loans to these nations which were separated from the Soviet Union blocs for their transition from communism to the capitalism or democracy. निश्चित रूप से जब इन्हें आर्थिक मदद मिलेगी, इकोनॉमिक हेल्प मिलेगा, तो ये निश्चित रूप से अपने वेस्ट की तरफ इनका झुकाव हुआ और बहुत सारे देश जो थे, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के बाल्टिक जो रिपब्लिक्स थे, ये लोग भी नेटो के सदस्य बन गए और कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने रेगुलेट किया, एस्टैब्लिश किया इन द रिपब्लिक्स फॉर देयर डेवलपमेंट। अब बात आती है इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। अब चूंकि कोल्ड वॉर खत्म है, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो नए जो कंट्रीज वो उभर कर सामने आए, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड के कंट्रीज थे, सोवियत यूनियन के ब्लॉक्स के डिवीजन होने के बाद वो अलग हो गए और उनकी अपनी अलग पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। और मुख्य रूप से ऐसे कंट्रीज सोवियत यूनियन को छोड़कर, रशिया को छोड़कर, ये लोग यूएसए की तरफ इनका रुझान हो। हालांकि
इन्होंने रशिया, अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, दोनों के साथ अपना संबंध बनाए रखा, ताकि जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो इनको हम हेल्प के रूप में ले सकें। थर्ड, इस स्थिति में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, जोग्राफिकली दे वर वेरी क्लोज टू रशिया, दे एक्सप्रेस देयर डिजायर टू अटैच विद रशिया बिकॉज दे न्यू वेरी वेल कि रशिया हमारा बहुत भौगोलिक दृष्टिकोण से जोग्राफिकली वेरी हम क्लोज, रशिया हमारी मदद करेगा। कभी न कभी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने देखा कि हमें रशिया के साथ रहना चाहिए। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट कर दिया सोवियत यूनियन, लेकिन हम सबको मालूम है कि रशिया का जो रोल था सोवियत यूनियन वाली रोल थी, क्योंकि यूएनओ में जो सोवियत सीट था, जिसको अब सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स, ये चीज़ें हमारे रशिया को मिली है। इसलिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज विशेषकर रशिया के साथ रहे और कुछ अपने रिलेशंस वेस्ट के साथ भी बना के रखे। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये प्रभाव पड़ा विश्व लेवल पे। कोल्ड वार एंड हो गया, नए पॉलिटिक्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुए, उसी सिलसिले में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई और नए कंट्रीज जो है उभर कर सामने आए। इस प्रकार से ये पूरे संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। ओके।